Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to read the first short story from your textbook, that is The Unthankful Man. So let us start about the today's topic. This is a story about thanklessness. Raman, a poor man in the story, is a helpful person. He helps the tiger, the monkey, and the goldsmith. The tiger and the monkey prove to be thankful creatures, while as the goldsmith makes a brazen show of his thanklessness and deceit. That is, bold, brazen means bold and without shame. Read the story and find out the moral of the story. Dear students, we have to read the story and we have to find out the moral of the story. What is the meaning of brazen? It is bold and without shame. Meaning of brazen is bold and without shame. So let us start. Raman was a poor Brahmin who lived with his wife on the outskirts of a small town. Meaning of outskirt, याद रखना, the outer area of a city or a town or a village. The outer area of a city or a town or village, that is the outskirt. Here it is mentioned, Raman was a poor Brahmin who lived with his wife, जो अपनी बीवी के साथ रहता था. कहाँ पे? On the outskirts of a small town. Outer area of a town. टाउन के बाहर वाले इलाके में रहता था. Outskirt में रहता था. He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. His family, they were poor. बहुत गरीब थे वो और उसकी बीवी को कुछ दिनों के लिए हंगरी रहना पड़ता था. इतनी गरीबी थी उनमें, इतने पुअर थे वो. He was so poor that he and his wife, Raman और उसकी बीवी को, they have to remain hungry for days together. इतने वो गरीब थे. His wife was fed up with their poverty. Fed up means तंग आ चुके थे. उसकी जो बीवी थी वो गरीबी से तंग आ चुकी थी, उकता गई थी. One day she said to her husband, एक दिन उसने अपने शौहर से कहा, why don't you go to the nearby town and seek some job? Seek means हासिल करना. Why don't you go to the nearby town? जो नजदीकी टाउन है, नियरबाई टाउन है, आप वहां क्यों नहीं जाते हो? एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा कि आप वहां क्यों नहीं जाते हो, जो ये हमारा टाउन है, आप वहां क्यों नहीं जाते हो, जो नजदीक में हमारा ये कस्बा है, वहां पे आपको कुछ जॉब हासिल करना चाहिए. Raman liked the idea and decided to go to a nearby town to look for a job. रमन को ये आइडिया बहुत पसंद आया. To go to a nearby town to look for a job. अब वो अपनी जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में टाउन की तरफ निकला. On his way, he had to pass through a forest. एक जंगल से गुजरना पड़ा. रास्ते में उसको एक जंगल से, ताकि टाउन पहुंच सके. He was tired and hungry. बहुत थका हुआ था, बहुत भूखा था. He gathered some wild fruit and sat down by a well to eat it. अब उसने कुछ वाइल्ड फ्रूट्स कलेक्ट किए. अब वो नीचे बैठा. And sat down by a well to eat it. वहां पे एक कुआं था, उसके साथ बैठ गया. Just then he heard some voices. तो उसने कुछ आवाजें सुनी. The voices were coming from the well. वो आवाजें कुएं से आ रही थी. तुम आवाज़ क्रेरी पेट नियरान.
He was surprised to hear the voices coming from the well. Raman was so surprised to hear the voices. हैरान रह गया. He peeped into the well. Peep means to secretly look at. What is the meaning of peep? To secretly look at. He peeped into the well. He peeped into the well. To his surprise. उसने वहां पे क्या देखा? जब वहां पे देखा, कुएं की तरफ झांका, देखा वहां पे, तो क्या देखा? He saw a tiger, monkey, a snake and a man in the well. तो वहां पे क्या देखता है वो? वहां पे एक टाइगर, एक मोंकी, स्नेक और एक आदमी को कुएं में पाता है. वहां पे वो होते हैं. द टाइगर saw him and said. द टाइगर saw him and said. टाइगर ने रमन को देखा और कहा, सर, जनाब, काइंडली हेल्प मी आउट, काइंडली हेल्प मी आउट ऑफ द वेल. मेहरबानी करके मुझे कुएं से बाहर निकालो. I will be ever grateful to you for that action. मैं उम्र भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा. Raman was frightened. रमन खौफजदा हुआ. He said, if I take you out, you will eat me up. अगर मैं आपको बाहर निकालूंगा तो आप मुझे खा जाओगे. Therefore, I cannot help you out of the well. You remain where you are. No, मैं आपको कुएं से बाहर नहीं निकाल सकता हूं. जहां पे आप हो वहीं पे रहो. The tiger said, have faith in me. I promise that I will do no harm to you. तो टाइगर ने कहा कि भरोसा रखो, तो मैं आपके साथ वादा करता हूं मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. On the other hand, I will try to help you. Please help me out. Raman was a kind man. तो टाइगर इससे यकीन दिलाता है कि मैं आपकी मदद करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मेहरबानी करके मुझे बाहर निकालो. रमन तो रहमदिल इंसान था, एक अच्छा आदमी था. He took pity on the tiger and pulled him out of the well. तरस आ जाता है इस पे तो इसको बाहर निकालता है टाइगर को. Thank you, kind man. The tiger said to him. शुक्रिया अदा किया आप टाइगर ने. If you ever need my help, please come to my cave. अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ी तो come to my cave. जहां पे मैं रहता हूं, केव जो गार होती जहां पे वो रहता है, तो वहां पे आ जाना. But mind you, do not take that man out of the well. मगर साथ ही साथ क्या कहा कि जो आदमी उसमें फंसा हुआ है इसको बाहर नहीं निकालना. He is the most ungrateful, thankless creature on this earth. Ungrateful means thankless creature on the earth. He is the most ungrateful, thankless creature on this earth. So saying, the tiger went away from there. तो ये कहते कहते वहां से चला टाइगर. As soon as he was gone, the monkey called out to Raman and said, kind man, this well is so steep. What is the meaning of steep? Having a sharp slope. Steep means having a sharp slope. I can't climb out of it. Please help me out. तो यहाँ पे उसके बाद जब टाइगर चला जाता है तो वहां से आवाज आ जाती है. मंकी पुकारता है अब रमन को. Oh kind man, please help me out. This well is so steep. I can't climb out of it. मैं खुद नहीं चढ़ सकता हूँ इस पे, इतना स्टीप है ये. Please help me out. मेरी मदद करो. Raman readily pulled out the monkey. जल्दी से monkey को बाहर निकाला जाता है, बंदर को निकाला जाता है. Monkey also thanked Raman and said. Monkey भी शुक्रिया अदा करता है और कहता है, if you ever need my help, please come to the mango tree by the riverside outside this jungle. ये भी इससे ये कहता कि जो मंकी होता है कि अगर कभी आपको मेरे मदद की जरूरत हो तो प्लीज कम टू द मैंगो ट्री बाय द रिवरसाइड पे जो मैंगो ट्री है, दिस जंगल. He then advised him not to pull द मैन आउट ऑफ द वेल. ये भी इसको एडवाइस करता है कि जो आदमी उसमें फंसा हुआ है तो उसको बाहर मत निकालना. इज ए वेरी अनग्रेटफुल क्रिएचर. वो
बहुत अनग्रेटफुल थैंकलेस क्रिएचर है, डोंट लिसन हिम, उसका नहीं सुनना, उसको बाहर नहीं निकालना। देन द मोंकी वेंट अवे, तो मोंकी चला जाता है। ये भी इससे जो मोंकी होता है यहाँ पे, अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत पड़ी तो प्लीज़ कम टू द मैंगो ट्री बाय द रिवर्स आउटसाइड दिस जंगल, वहाँ पे वहाँ पे वो रहता है, मैंगो ट्री बाय द रिवर साइड आउटसाइड दिस जंगल। तो इसकी एडवाइस भी होती है कि डोंट pull him out of the well. He is ungrateful, thankless creature. Raman had hardly sat down to eat the wild fruit when the snake called out to him, "Please, kind sir, help me out of this well and save my life." Raman was scared of the snake. He said, "If I pull, you may bite मी एंड आई विल डाई." जब मोंकी चला जाता है, बंदर चला जाता है, रमन तो अब फ्रूट खाने बैठा था वहां पे। रमन हैड हार्डली सैट डाउन टू ईट द वाइल्ड फ्रूट व्हेन द स्नेक कॉल्ड आउट टू हिम। इतने में ही अब वो मुश्किलन उसको वो नीचे बैठा था कि इतने में स्नेक पुकारता है, "प्लीज सर, मेहरबानी करके मुझे भी बाहर निकालो, मेरी जिंदगी को बचाओ." रमन तो बहुत डर गया। उसने कहा कि अगर आपको मैं बाहर निकालूंगा तो आप मुझे काटोगे और मैं मर जाऊंगा। द स्नेक सेड, "प्लीज हैव नो फियर, आई शैल कॉज यू नो हार्म." तो स्नेक भी कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मेहरबानी करके मुझे बाहर निकालो, कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रमन टुक पिटी ऑन द स्नेक एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल। रमन को इस पे तरस आ जाता है स्नेक पे और उसको बाहर निकालता है। द स्नेक ऑल्सो थैंक्ड हिम एंड सेड, जो ये सांप होता है वो भी इसका शुक्रिया अदा करता है, "इफ यू नीड माई हेल्प जस्ट कॉल आउट टू मी एंड आई शैल बी देयर टू हेल्प यू." जब भी कभी आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो, मुझे पुकार लेना, तो मैं आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। बट डोंट लिसन टू दैट अनग्रेटफुल मैन, डोंट, इट इज़ अ कंट्रैक्टेड फॉर्म, डू नॉट का जो कंट्रैक्टेड फॉर्म है दैट इज डोंट पुल हिम आउट ऑफ द वेल, मेहरबानी करके इसको बाहर नहीं निकालना जो आदमी उसमें फंसा हुआ है। सो सेइंग द स्नेक स्लिथर्ड अवे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लिथर? टू मूव इन ए कर्विंग वे, टू मूव इन ए जिगजैग वे, टू मूव इन ए कर्विंग वे, टू मूव इन ए कर्विंग वे और टू मूव इन ए जिगजैग वे। अब वो वहां से चला जाता है जिगजैग वे में, ऐसे जैसे आपको यहाँ पे मैं दिखा सकता हूं कैसे वो स्लिथरिंग हम किसे कहते हैं, ठीक है, टू मूव इन ए जिगजैग वे, वहां से चला जाता है। When the snake had disappeared, the man called out to Raman and said, "Please help me out of the well and save my life." जब वहां से स्नेक चला जाता है, डिसअपियर हो जाता है, अब तो आदमी वहां पे रह जाता है कुएं में, उसकी आवाज भी ही होती है, "प्लीज सेव माई लाइफ." रमन थॉट, "व्हाट हार्म कैन दिस मैन डू टू मी?" तो रमन ने सोचा ये क्या नुकसान मुझे पहुंचा सकता है। ही पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल, तो उसको वो कुएं से बाहर निकालता है। द मैन थैंक्ड हिम एंड सेड, "इफ यू नीड माई हेल्प कम टू मी, आई लिव इन वाराणसी एंड आई एम ए गोल्ड स्मिथ बाय प्रोफेशन." तो आदमी भी शुक्रिया अदा करता है, अगर आपको मेरी ज़रूरत होगी तो आई लिव इन वाराणसी, मैं वाराणसी में रहता हूँ, मैं गोल्ड स्मिथ बाय प्रोफेशन आई एम गोल्ड स्मिथ। सो सेइंग द मैन ऑल्सो वेंट अवे, ये कहते कहते ये आदमी भी चला गया। रमन रीच्ड द नियर बाय टाउन, अब तो रमन जो नज़दीकी टाउन था वहाँ पे पहुँच गया, क्योंकि उसको वहाँ पे जॉब हासिल करना था। फॉर सेवरल डेज ही ट्राइड टू गेट ए जॉब, बहुत दिनों के लिए कोशिश करता रहा टू गेट ए जॉब, नौकरी मिल जाए। बट ही कुड नॉट फाइंड वन, नौकरी नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी नौकरी हासिल नहीं होती है। ही वॉज हंग्री, भूखा था, थका हुआ था। ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, ही फेल्ट डिप्रेस्ड, he decided to go back home. अब वो
मायूस हुआ। अब वो चाहता था, उसने फैसला किया कि मैं वापस घर चला जाऊं। ठीक है, ये कहानी हमने यहाँ तक पढ़ी। तो जो इसमें बाकी स्टोरी जो रह जाती है तो हम इंशाल्लाह अगले वाले टॉपिक्स में, अगले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।